Assalamu alaikum, everyone. This is Soban Jalil. I'm coming to you with Nabil as my co-host for our first of its kind webinar through Park Launch on resume writing and career building. Just to give a quick introduction about Park Launch. So Park Launch's vision is to actually build Pakistan as a top 10 ecosystem in the world. And for doing that, Park Launch started in 2020 April as a WhatsApp group, but mashallah, it has expanded to 300,000 plus community members at different platforms, and they have helped raised 80 startups, about $80 million, and have conducted 4 major events, and a lot of venture VCs and founders are part of this community. So thank you, Park Launch, for providing this opportunity. So for today, thank you for joining on Saturday morning. Format will be that Nabil and I will kind of give our introduction, who we are and why we are. And after that, Nabil is going to cover some personal branding side of how you can do personal branding. And then I will cover a few resume items and some tips. So it will be more interactive. You can use the chat window for all the questions, and we will go from there. So just starting up with this, the attendees, we had a survey sent out. So this demographics is mostly geared towards students and young professionals. So just starting from here, let me know. And we'll switch between English and Urdu. So please bear with us, I guess, on that. So just for my introduction, I'm Soban Jalil. I actually graduated from GIK Institute in 1998. So I was there where you are about 25 years ago. So Beta, I think what I see life has 3 stages. Like 0 to 25, you are in a learning and developing stage. And from 25 to 65, you are in a growing and earning stage. And 65 onwards, you start contributing, giving. Again, these are not things that we will worry about too much. They are not set in stone. But generally, I graduated after graduation from GIK. I went to US. I went to Gannon University for my master's. I joined GE as a company, and GE has been my company for last 20 plus years. I did a few other higher studies at University of Maryland, University of Pittsburgh. Then I continued with different divisions of GE, as you can see in the chart, with the GE Marine and oil and gas. But all the things I kept learning. So that's the key point that we will be discussing as we transition with Nabil and my journey and how you can embark on the same journey. So eventually I joined oil and gas sector in 2014 onwards. And now I'm working in Wabtec Corporation, which is world's largest railroad equipment manufacturer. So I work as a commercial program manager. But on the journey, you will also see that I was participating in a lot of other non-work related organizations, whether PIQC stands for Pakistan Institute of Quality Control, Asian Pacific Forum, the Citizens Foundation, alumni associations, and so on and so forth. So 2020 onwards, I started to work a little bit more into consulting side as well. And I involved with Park Launch. That's how I came to know about Park Launch, some other nonprofits. So that's just my brief journey over years. I'm still learning every day, and I'm here to learn with you guys. So with that, I will give it to Nabil. Nabil, your introduction, please. Thank you very much, Subhan. Assalamu alaikum, everyone. I hope आप लोग enjoy कर रहे होंगे. जो पाकिस्तान में है, 7 बजे का टाइम है, अच्छी इवनिंग है, आज सुबह से मौसम बड़ा अच्छा है. मेरा इंट्रोडक्शन, माय नेम इज मोहम्मद नबील. NED यूनिवर्सिटी से 2012 में ग्रेजुएट किया मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में. उसके बाद मेरा रोबोटिक्स में बहुत ज़्यादा पैशन था, तो मैं स्कॉलरशिप पे, फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे मास्टर्स करने चले गया साउथ कोरिया. साउथ कोरिया के बाद मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद मुझे PhD करने का शौक था, तो आई अप्लाइड इन PhD. आई वाज सेलेक्टेड इन PhD टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिख, जर्मनी.
वहाँ मैंने अपना पीएचडी स्टार्ट किया, लेकिन पीएचडी के दौरान मैं अपना एक स्टार्टअप एडवान रोबोटिक्स भी रन कर रहा था। सो आई क्विट माय पीएचडी एंड केम बैक टू पाकिस्तान एंड वर्किंग फुल टाइम ऑन एडवान रोबोटिक्स फ्रॉम लास्ट 6 ईयर आई गेस। इसके अलावा एक हमारा वॉलंटियर इनिशिएटिव है स्कॉलरशिप नेटवर्क के नाम से। आप सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि स्कॉलरशिप नेटवर्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो स्टूडेंट जो कि स्कॉलरशिप के फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे मास्टर्स या पीएचडी मेनली करना जाना चाहते हैं पाकिस्तान से, तो उनको फुल गाइडेंस मौजूद होती है। उसका लिंक वगैरह भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा एडवान रोबोटिक्स कंपनी है मेरी एज अ स्टार्टअप जो कि स्कूल लेवल के ऊपर आईटी या स्किल बेस्ड एजुकेशन के करिकुलम को प्रमोट कर रहा है। वी आर वर्किंग विद more than 250 schools all over the Pakistan and we are the biggest company in this specific sector in Pakistan. इसके अलावा हमारा रिसेंटली हमने एक स्कूलिंग सिस्टम एक्वायर किया, मोमेंटस स्कूलिंग सिस्टम। वी हैव 24 कैंपसेस ऑल ओवर पाकिस्तान। इसके अलावा एक और चीज़ जो कंटेंट क्रिएशन के ऊपर काम करते हैं, स्टार्टअप फाउंडर से रिलेटेड, स्टार्टअप फाउंडर्स 101 के नाम से यूट्यूब पे मेरा एक चैनल है जहाँ पे बहुत सारे फाउंडर्स और जो लोग काबिल हैं उनकी जर्नी डिस्कस करते हैं ताकि लोग जो है वो समझ सकें। तो इस सब ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये स्टार्ट करने से पहले ना एक शेर अल्लामा इकबाल का है, वो पहले मैंने अल्लामा इकबाल का शेर अलग है, मैंने थोड़ा आप लोगों के लिए ऑडियंस के लिए बना दिया। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर जॉब से पहले एचआर मैनेजर तुझसे पूछे बता तेरा रिज्यूमे कहाँ है। तो ये चीज ये शेर अल्लामा इकबाल ने एक डिफरेंट सिचुएशन में कहा था, आपकी डिफरेंट सिचुएशन है, लेकिन देखिए बात बिल्कुल वही है। यहाँ पे दो चीजों में हमने स्लाइड को इंटेंशनली डिवाइड किया है। वन इज के अपने आप की ब्रांडिंग किस तरह से करनी है, अपने आप को स्टैंड आउट कैसे करना है, क्योंकि एज ए स्टूडेंट जब आप अप्लाई कर रहे हैं ना तो आपके साथ बहुत सारे और स्टूडेंट भी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या स्पेसिफिक पोजीशन के लिए। तो जो रिक्रूटर है उसको किस तरह से आप ये कन्विंस करेंगे कि वो जो है वो आपको सेलेक्ट करे कंपेयर टू दूसरे जो स्टूडेंट हैं। तो उसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं जो जरूरी हैं अगर आपने फॉर एग्जांपल जॉब के लिए अप्लाई करना है, या यहाँ पे दो चीजें मैंने इंक्लूड की है। अगर स्कॉलरशिप के लिए मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है तो आपने किस डायरेक्शन में जाना है, और अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए भी क्या क्या चीज होगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे पहली लगती है वो ये तो है कि फोकस ऑन स्किल्स ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी। अगर अपने स्किल्स पे फोकस आप नहीं कर रहे तो आप रेज्यूमे कितना ही खूबसूरत बना लें, कितना ही ग्राफिक डिजाइनिंग कर लें, आपको कहीं जॉब नहीं मिलनी, क्योंकि जाहिर सी बात है स्किल्स होंगे तो वो कंपनी आपको रखेगी। तो ये स्टूडेंट बड़े जहन में रखें अपने के स्किल्स होना जरूरी है। इसके साथ साथ एक और चीज ख्याल में रखें, आजकल पाकिस्तान में बड़ी बात चल रही है कि स्किल्स होना जरूरी और डिग्री होना जरूरी नहीं है, स्किल्स होना चाहिए। ये बहुत रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। स्किल्स विद डिग्री इज रियली इंपॉर्टेंट, जो आपको ग्रो कर देगी आपकी अपनी जर्नी में। तो पहली चीज ये। अब सबसे पहला पॉइंट ये है कि पर्सनल ब्रांडिंग के अगर आपने अपनी करनी है तो आप ये सब स्टूडेंट्स की अपनी वेबसाइट होनी चाहिए। इस एक वेबसाइट आपको जब डिस्कशन हो रही होगी क्वेश्चन आंसर सेशन तो उसमें एक ऐसा सैंपल भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहली चीज कि आप फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी में जब आए, फॉर एग्जाम्पल अभी आप थर्ड ईयर में हो सकते हैं, तो आप भी अभी से स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपने नहीं बनाई। तो जो जो प्रोजेक्ट्स या जो जो आप काम कर रहे हैं उन काम को, सारे कामों को आप अपनी वेबसाइट, एक पर्सनल वेबसाइट बनाए जिसमें सारे प्रोजेक्ट्स की आपकी वीडियोस हो, डिस्क्रिप्शन हो डिटेल के अंदर, ताकि फॉर एग्जांपल कि अगर एक रिक्रूटर है उसके पास आपकी अगर सीवी जाती है और आपके साथी की सीवी जाती है और आपने सिर्फ अपनी प्रोफाइल अच्छी तरह से मैनेज की हुई है, वेबसाइट बनाई हुई है अच्छी सी, उसके अंदर सारी चीजें इंक्लूड की हुई है, तो आपके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए इस एक और चीज ये जो, क्योंकि हम स्कॉलरशिप नेटवर्क के ऊपर बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को वॉलंटियर बेसिस पे गाइड करते हैं, तो वहां पे हमने देखा है कि जब आप खासतौर पे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो इस तरह की अगर आपकी वेबसाइट है जिसपे आपके टेक्निकल प्रोजेक्ट्स की डिटेल है ना, उसमें वीडियो में आपने समझाया हुआ है, तो आपकी जो स्किल्स है वो आप बता रहे होते हैं, क्योंकि रेज्यूमे में तो सिर्फ वन पेजर है ना, आप उसमें कोई एक्सप्लेन नहीं हो रही होती। तो वेबसाइट से आपको ये सबसे बड़ा फायदा होता है। तो वन इज आपकी वेबसाइट होना जरूरी है मेरे हिसाब से हर स्टूडेंट की। सेकंड इज कि आपका यूट्यूब चैनल अगर है तो वो आपको एक एडिटिव एडवांटेज देता है। बहुत सारे रिक्रूटर नहीं देखते इस चीज को, लेकिन बहुत सारी जगहों पे फॉर एग्जांपल जो मास्टर्स वगैरह की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं या एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये चीजें बहुत ज्यादा देखी जा रही होती हैं कि आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रोग्रामर हैं और आपने अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है जिसमें प्रोग्रामिंग के ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट समझाए हुए हैं और आपके सब्सक्राइबर भी अच्छे हैं,
तो लोगों को एकदम वो जाता है कि यार वाकई में इस बच्चे को आता है, इसने जो रिज्यूमे में लिखा हुआ है वो इसको आता भी है, और वहां से हमने चैनल से देख लिया। तो वेबसाइट और यूट्यूब चैनल समझ लें काइंड ऑफ सेम बेनिफिट दे रहा होता है आपको रिक्रूटर की नज़र में, या अगर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एकेडमी की जो कमेटी है उसकी नज़र में। इसी तरह से प्रोजेक्ट्स नॉर्मली मैंने देखा है यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बनाना शुरू करते हैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट मेनली, या ग्रेड थर्ड मैक्सिमम बनाना शुरू किया तो थर्ड ईयर में। अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, खासतौर पे जो इस टाइम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, उनको रिकमेंडेशन ये है कि वो पहले साल से छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू कर दें, और उन प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड जो भी ट्यूटोरियल है वो बना के अपने यूट्यूब चैनल पे बनाएं, और उसी चीज को अपनी वेबसाइट के ऊपर भी अपडेट करते रहें। आप इसको इस तरह समझें कि अगर फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक आप हर प्रोजेक्ट की इसी तरह से वीडियो ट्यूटोरियल बना रहे हैं, सारा जितना भी आपने कंटेंट बनाया वो बना के अपनी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पे बना रहे हैं, तो जब आप इस पर्टिकुलर चीज को देखेंगे 4 साल बाद, तो बहुत ज्यादा वहां पे कंटेंट अवेलेबल होगा आपकी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पे, जो कि सामने वाले को देख के ये बता रहा होगा कि वाकई में इस बंदे को, इस लड़के या लड़की को काम आता है। तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा होता है इस चीज के अंदर। फिर इसी तरह से अगर आपका मास्टर्स, स्पेसिफिकली अगर मास्टर्स का प्रोग्राम है और स्कॉलरशिप पे मास्टर्स करने जाना है, तो आपका एटलीस्ट अंडर में एक रिसर्च पेपर होना जरूरी है। उससे फायदा ये होता है कि आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, इनमें से बहुत सारी चीजें हैं जो मैंडेटरी नहीं है, ठीक। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन रिकमेंडेड है, हाईली रिकमेंडेड है, ताकि आप अगर वो करते हैं तो आपके चांसेस स्टैंड आउट कर जाते हैं आप क्राउड के अंदर से। फिर इसी तरह से इंटर्नशिप, बहुत सारे स्टूडेंट इंटर्नशिप जाते हैं थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में जाके करके। भैया फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करें। फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई भी फील्ड है, मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, तो जो पीसीबी डिजाइनिंग की कोई भी कंपनी है वहां पे आप सिर्फ सोल्डरिंग करने के लिए इंटर्नशिप पे लग जाएं। आपको किसने बोला कि आपको व्हाइट कॉलर जॉब ढूंढनी है? अपने हाथ गंदे करें, इंटर्नशिप जो छोटी से छोटी मिलती है, पैसों को इतना ज्यादा इस टाइम पे नहीं सोचें, खासतौर पे जब आप स्टूडेंट, तो उसके ऊपर है। अगर आपको इंटर्नशिप मिलती है तो उस इंटर्नशिप को कर लें, लेकिन वो टेक्निकल स्किल्स आपको सीखने को मिल रहे हो, ये ना हो कि बहुत सारी। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। इसका आगे रिज्यूमे पे भी हम बात करेंगे कि क्या फर्क पड़ता है, बट दैट्स वेरी गुड पॉइंट इंटर्नशिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना चाहिए। दूसरी एक और चीज जो मैंने देखा पाकिस्तान के अंदर स्पेसिफिकली, कि इंटर्नशिप बच्चे कर रहे होते हैं फॉर द सेक ऑफ इंटर्नशिप। ठीक है, उन्होंने किसी अपने खाला खालू चाचा चाचा से सोर्स लगा के इंटर्नशिप ले ली होती है, वो जाते हैं, टाइम गुजारते हैं, आ जाते हैं, कुछ सीखते नहीं है। देखिए ये आपका नुकसान है, उस कंपनी का कोई नुकसान नहीं हो रहा। आपने टेक्निकल स्किल्स वहां पे सीखने हैं, वहां पे कनेक्शन और नेटवर्क बिल्ड करना है, क्योंकि हो सकता है कि आपको वही कंपनी में फॉर एग्जाम्पल इंटर्नशिप मिलती है, आप मेहनत से काम करते हैं, तो वहां पे जो मैनेजर है, वहां पे जो जीएम है, उससे अगर आपकी अच्छी दोस्ती हो जाती है, और जब आप अंडर ग्रेड करके निकलते हैं और आप उससे बोलते हैं कि सर मैंने कर लिया और ये चीजें मुझे आती हैं, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस चीज को ख्याल रखें, बहुत सारे लोग इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं। इसी तरह से यूनिवर्सिटीज में जितनी भी सोसाइटीज हैं जो आपसे इंटरेस्ट से रिलेटेड है, उसमें पार्टिसिपेट करें, वॉलंटियर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। ये आपको बहुत ज्यादा पर्सनल लेवल पे ग्रूमिंग में भी हेल्प करती है, और जब आप खासतौर पर मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं या इस तरह की जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो देखते हैं कि लीडरशिप स्किल्स वगैरह बच्चों की कैसे डेवलप हो रही है। इसी तरह से नेटवर्क बिल्डिंग के लिए जरूरी है, अब तो बहुत आसान हो गया, हमारे टाइम पे ये नहीं था, कि बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स बने हुए हैं आपके आसपास यूनिवर्सिटीज में। तो वहां पे जाएं, वहां पे जो फाउंडर्स मीटअप होते हैं, वहां पे फाउंडर्स से मिलें और उनसे कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करें। इसी तरह से बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए अप्लाई ही नहीं करते सिरे से। अंडर के अंदर एक्सचेंज प्रोग्राम पे जरूर अप्लाई करें और कोशिश करें कि यूएस चले जाएं, तुर्की चले जाएं, बहुत सारे जापान के एक्सचेंज प्रोग्राम आते हैं, साउथ कोरिया के आते हैं, तो किसी ना किसी एक्सचेंज प्रोग्राम में एक सेमेस्टर लगा के आ जाए। ये अगेन आपके रेज्यूमे को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, और उसके साथ साथ आपकी जो अपनी प्रोफेशनल या पर्सनल डेवलपमेंट है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होगा। इसी तरीके से जब आप रेज्यूमे की डिटेल जो है सुभान आपको बताएंगे डिटेल, लेकिन मैं एक चीज से यहाँ पे 2-3 चीजें रेज्यूमे से रिलेटेड मेंशन कर दूं, कि जब भी आप रेज्यूमे बनाते हैं तो वो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो एक जेनेरिक रेज्यूमे उन्होंने बनाया और वो ही सबको भेज रहे हैं। कुछ तो बहुत ही महान स्टूडेंट होते हैं, वो क्या करते हैं कि एक ईमेल बनाते हैं, उसमें सारे कंपनीज के लोगों को सीसी करते हैं या टू में ऐड कर देते हैं और भेज देते हैं सबको कि भाई जिसको लेना मुझे ले लो। भाई ऐसा ना करें, जब भी आप रेज्यूमे भेज रहे हैं किसी भी कंपनी को, तो उसके अंदर देखें कि उन्हें क्या रिक्वायर्ड है, उसके हिसाब से कीवर्ड यूज करें, और हर कंपनी को टेलर मेड ईमेल और रेज्यूमे बना के भेजें। उससे आपके जो सक्सेस रेट होता है वो बढ़ जाता है। हेलो। ठीक है,
इसी तरह से आपका जो कवर लेटर है वो भी जेनेरिक नहीं होना चाहिए, वो स्पेसिफिक टू दैट कंपनी या स्पेसिफिक टू दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी होना चाहिए अगर आप मास्टर्स वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह से एक जो लास्ट पॉइंट है वो है आपका लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इसके ऊपर डिटेल में सुभान आगे वाली स्लाइड्स के अंदर डिस्कस करेंगे, तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। लेकिन ये जो पॉइंट्स आपको सामने नज़र आ रहे हैं, ये पॉइंट्स देखने में बहुत आसान लगते हैं, लेकिन हमारे स्टूडेंट हमेशा से गलती क्या करते हैं, वो ये बोलते हैं कि रेज़्यूमे अच्छा कैसे बनेगा? भाई रेज़्यूमे अच्छा तब बनेगा जब आपने काम किए होंगे। तो काम वाली स्लाइड होगी तो रेज़्यूमे में लिखेंगे आप। अगर आपने काम ही नहीं किया तो रेज़्यूमे आप कितना भी अच्छा बनाते रहे, आप स्टैंड आउट नहीं करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो आपको होने चाहिए। इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर सेशन में हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। हैंड ओवर टू सुभान। Yeah, आगे थैंक यू नबील। बड़ी आई थिंक आपने बड़ी जबरदस्त बात कही है, और ये सारी जो हैं ये दीज आर बेस्ड ऑन नबील एंड माय एक्सपीरियंसेस। आई थिंक आई फुली एंडोर्स व्हाट नबील इज सेइंग। फॉर्मेट ये है कि हम इसको आगे लेके चलेंगे, थोड़ा सा स्लाइड्स हमारे पास 2-3 हैं, आपको दे देंगे, एंड देन वी विल ओपन अप चैट विंडो। तो आपके माइक्स म्यूट हैं, तो जस्ट यूज द चैट विंडो फॉर एनी क्वेश्चंस और एनी कंसर्न्स। तो I will cover a little bit on the resume tips. आपको स्लाइड का कवर नजर नहीं आ रहा, but basically what it is saying is कि resume क्या है, क्योंकि the questions we have received आपके जो सर्वे के थे उसमें कुछ related थे जो कि resume कैसे करना है. So just if you take out of all these things, पहली बात ये है कि ATS compliant होना चाहिए. ATS क्या है? इट्स बेसिकली अ रोबोट। जब आप अप्लाई करते हैं किसी वेबसाइट पे, किसी कंपनी में, तो एक्चुअली आजकल एआई के ज़माने में जो बोट्स हैं वो दे आर लुकिंग एट योर रिज्यूमे, फर्स्ट फिल्टर लेवल वो हो रहा है। तो मेक श्योर ये योर रिज्यूमे इज एटीएस कंप्लायंट। उसके क्या रूल्स हैं? इट शुड बी सिंपल बुलेट्स इंफॉर्मेशन, उसमें कोई फैंसी पिक्चर्स, लिंक्स, आपकी कोई पासपोर्ट साइज की फोटो या वो उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कोई स्पेशल फॉर्मेटिंग नहीं होनी चाहिए कि आपने कुछ एक्स्ट्रा उसमें टेबल्स और वो सारा कुछ किया हो, और डिवाइडर्स या कॉलम्स। कई रेज्यूमे हमारे पास आते हैं जो कि उन्होंने कॉलम्स किए होते हैं। तो अगर आप एटीएस कंप्लायंट सिस्टम में डाल रहे हैं तो मेक श्योर के दे डू नॉट हैव ऑल दीज थिंग्स, आइकॉन्स और यूनिक फॉन्ट्स और इस तरह की कोई चीजें जो सी हैं। तो लेकिन अगर आप कैसे कोई आपने मैनुअल किसी को देना है तो देन दीज थिंग्स डू नॉट अप्लाई। आई एम टॉकिंग अबाउट एटीएस कंप्लायंस। अच्छा, अब सेकंड कॉलम में आ जाए कि कस्टमाइज्ड और कीवर्ड्स। ये अभी नबील ने बात की थी कि हमारे पास कई रेज्यूमे आते हैं जिसमें एक्चुअली बड़ा जेनेरिक रेज्यूमे होता है और वो पहले किसी में अप्लाई किया होता है। आप एक इंडस्ट्री में अप्लाई करें, फॉर एग्जांपल आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री में अप्लाई करें और वही रेज्यूमे उठा के आपने ऑयल एंड गैस में डाल दिया है। तो इट नीड्स टू बी टेलर टू द जॉब डिस्क्रिप्शन। आप जिस जॉब के लिए अप्लाई करें उसको समझें, मेक श्योर करें कि उनके कीवर्ड्स और रेलिवेंट एक्सपीरियंस, क्योंकि हर एक एक्सपीरियंस होता है, बट हाउ डू यू डिस्क्राइब एंड कन्वर्ट दैट एक्सपीरियंस टू रिलेट टू द जॉब। तो दैट इज द की थिंग। उसका अगर फॉर्मेट का कोई है और थोड़ा बहुत उसको ऊपर नीचे करना है, वी विल डिस्कस अ लिटिल बिट इन द नेक्स्ट स्लाइड कि क्या आप उसको चेंजेस कर सकते हैं। तो कस्टमाइज इट। हर जॉब की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट एंड यू हैव टू गो फॉर इट। ट्राई टू अवॉइड एब्रीविएशंस और इंडस्ट्री स्पेसिफिक्स। अब ये एक एक्चुअली बात है कि आप जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, और ये आपको ज्यादा फील होगा नॉट एट अर्ली स्टेज क्योंकि आपका एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन जब आप एक इंडस्ट्री में आ जाते हैं उसकी कुछ इंडस्ट्री की लैंग्वेज होती है। तो ट्राई टू अवॉइड दैट जार्गन्स, और वो जो लैंग्वेज है ना उसको अवॉइड कर जितना मैक्सिमम हो सके। कुछ जगहों पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए ठीक है आपको ऐड करना पड़ता है, लेकिन वो इंडस्ट्री की जार्गन और एब्रीविएशंस आपका जो नेक्स्ट बंदा जो देख रहा है आपका रेज्यूमे वो नहीं समझ सकेगा। सो ट्राई टू अवॉइड इट, कीप इट सिंपल। थर्ड पॉइंट, डू योर रिसर्च। अच्छा, ये बड़ी मजे की बात है क्योंकि मेरे पास काफी रेज्यूमे मतलब हायरिंग भी करते हैं और रेज्यूमेस भी आते हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द कंपनी। इसमें मकसद ये है कि होमवर्क आपको करना है, रिसर्च आपको करनी है। मैं, नबील या कोई और आपको जो है हम लोग गाइड कर सकते हैं, हम आपके लिए जॉब सर्च नहीं कर सकते। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि आप जब कोई किसी को रेज्यूमे भेज देते हैं ना कि भाई ये मेरा रेज्यूमे है, प्लीज फाइंड मी अ जॉब, ये नहीं चलता। ये ब्लाइंड शॉट होता है कि भाई वो फेंक दिया रेज्यूमे, कोई ना कोई तो कैच कर लेगा। इस तरह नहीं होगा। फोकस, डू योर रिसर्च। इसका एक मेथड मैं आगे आगे चल के बता दूंगा अगर क्वेश्चन आंसर्स में, कि मेक श्योर यू हैव एक्सेल फाइल कि आपने किस इंडस्ट्री में जाना है। यू शुड बी क्लियर कि आपकी स्किल्स किससे मैच कर रही हैं और कौन सी कंपनीज हैं जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हो, एंड देन ट्रैक इट लाइक a full-time job. Like job searching itself is a full-time job. So
सो मेक श्योर यू रीड अबाउट द कंपनी, अंडरस्टैंड कि वो करती क्या है, ठीक है? ऐसा ना हो कि आप अप्लाई करें ऑयल एंड गैस कंपनी में और उसमें आप एक्सपेक्टेशंस आपकी वो हैं कि वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री से रिलेटेड आप मतलब इट विल बी अ हॉच पॉच। दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास एक लिंक्डइन प्रोफाइल है, उसका मैं थोड़ा आगे जाके बताऊंगा, तो कनेक्ट विद द रेफरेंसेस। इस कंपनी में कौन है? फॉर एग्जांपल, अगर आपने अप्लाई करना है गूगल में, तो सर्च आउट के आपके नेटवर्क में या आपके सेकंड डिग्री नेटवर्क में कौन कौन है, कोई है उसमें गूगल में, आप उनके साथ उनसे इंटरनल रेफरल करें। इंटरनल रेफरेंस पे मैं इसलिए ज़्यादा फोकस करता हूँ क्योंकि अगर आपका रेज्यूमे है, जिस अभी नबील ने बात की कि बहुत सारे लोग, आप अकेले नहीं हैं, इट्स अ ग्लोबल कंपटीशन, तो जो रेफरल जो सा होता है ना, उसकी वेटेज ज्यादा हो जाती है। तो इफ यू आर रियली फोकस्ड एंड यू थिंक कि आपका चांस अच्छा है, यू हैव अ गुड रिज्यूमे, यू हैव अ गुड एक्सपीरियंस, देन डू गो फॉर इंटरनल रेफरल। इंटरनल रेफरल सिस्टम होता है, ये मैं ज्यादातर क्योंकि मैं यूएस में हूँ, तो मैं यूएस पर्सपेक्टिव में थोड़ी सी बातें करूंगा, मे बी कि इसकी एप्लीकेबिलिटी पाकिस्तान में मतलब इतनी ज्यादा हो या ना हो। लेकिन इंटरनल रेफरल ये होता है कि उसकी उसमें आपको एक रेफरेंस मिल जाता है कि यार somebody is recommending you that you know him, so use that, उसमें कोई मसला नहीं है। उसमें आप कोई प्रोसेस बाईपास नहीं कर रहे या आप किसी के नेपोटिज्म में नहीं आ रहे कि सिफारिश हो गई है या ये हो गया वो हो गया। उसमें इट्स जस्ट दैट यू नो समबडी, आपको ड्यू डिलिजेंस सारी वही करनी पड़ेगी, आपका रिज्यूमे चेक होगा, आपका इंटरव्यू होगा, वो सारी ड्यू डिलिजेंस होगी। सो थिंक फ्रॉम दैट। तीसरी बात जो मैं करना चाहता हूँ रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, थिंक कि हायरिंग मैनेजर क्या चाह रहा है। हम हमेशा ये ज़्यादातर सोचते हैं कि मैं क्या चाह रहा हूँ या मैं क्या चाह रही हूँ। तो थिंक फ्रॉम हायरिंग मैनेजर्स कि उसकी क्या ज़रूरत है, उसकी क्या प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व कर सकते हैं। वो जब क्लिक हो जाएगा, देन द स्टोरी गोज़। तो दैट्स सम ऑफ द टिप्स कि रिसर्च कैसे करनी है और क्यों करनी है और क्या उसकी वैल्यू क्या है। लास्ट थिंग, वैल्यू स्टोरी, फैक्ट्स ड्रिवन। आपके जो रिज्यूमे होना चाहिए, इट शुड नॉट बी जेनेरिक, इट शुड बी वेरी स्पेसिफिक कि आपके एक्सपीरियंसेस क्या थे, आपने कैसे वैल्यू ऐड की, अपने अकम्पलिशमेंट्स को आपने कैसे क्वांटिफाई करना है। एग्जाम्पल उसकी ये है कि आप ये नहीं लिखेंगे कि मैं इंटर्नशिप की और मतलब फलां जगह पे मैंने इंटर्नशिप की इस डिपार्टमेंट में और समथिंग लाइक दैट। आपने इस डिपार्टमेंट में अगर इंटर्नशिप की तो आपने क्या चीजें बेहतर की, कितने परसेंट बेहतर की, किस टाइम फ्रेम में की, कोई क्वांटिफाई करें। आपका रिज्यूमे जो है, इट शुड टेल योर वैल्यू स्टोरी, फैक्ट्स नॉट वर्ड्स। मतलब जो नंबर्स होते हैं दैट एक्चुअली पिक्स। अगर आप साइकोलॉजिकली भी देखें, जब रिज्यूमे आता है तो आप नंबर्स को पहले जाएंगे, ओ अच्छा, आपने ये जो इसकी परफॉर्मेंस है या इस वेब पेज का जो हिट रेट है वो आपने 10% से 50% किया, दैट्स मोर क्वांटिफाइबल। अच्छा, कैसे किया है, फिर आगे काम चलेगा, डिस्कशन हो। So these are the four key items from a resume perspective that I just wanted to make sure. आपके questions, I know कि कुछ लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं और questions कर रहे हैं, please keep them in the chat window, हम इंशाल्लाह कुछ देर में questions की साइड पे जाते हैं। अच्छा, ये एक सैम्पल रिज्यूमे है और ये जो टिप्स मैंने पहले बात की हैं उनको मैं बेसिकली यहाँ पे कवर कर लिया है। ये बेसिकली जो यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पे यूएस में, लाइक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मैंने उनके करियर ऑफिस से लिया है। तो दैट्स वेयर यू नो व्हाट आर द डूज एंड द डोंट्स। बेसिकली आई एम नॉट गोइंग टू गो थ्रू इट, आई विल गिव यू द रियल लाइफ सैम्पल रिज्यूमे। ये ऊपर से आप नाम वगैरह नहीं देख सकते उसकी वजह से, बट इट्स बेसिकली अ सिंपल हेडर। इट्स अ फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ वन पेज रिज्यूमे। जब आप अर्ली अपनी लाइफ में हैं तो इट्स अ वन पेज रेज्यूमे। जनरली मतलब 2 पेजेस से ज्यादा का रेज्यूमे इवन मेरा भी नहीं है। मेरा 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है या नबील का भी इतना एक्सपीरियंस है, वी वुड नॉट गो बियॉन्ड 2 पेजेस। सो ट्राई टू कीप इट सिंपल, टू द पॉइंट कि आप क्या करना चाहते हैं, उसमें एक्स्ट्रा नहीं डालने की जरूरत होती। अच्छा, इसके कंटेंट्स क्या हैं? सिंपल हेडर, उसमें आपका नाम होगा, लिंक्डइन प्रोफाइल होगी, ईमेल और फोन नंबर, और कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे। एजुकेशन में एग्जैक्टली पॉइंट्स क्या हैं, वो मतलब आपने कब ग्रेजुएट किया, वो सारा कुछ की हाइलाइट्स। अभी आप रिलेटिवली आप अभी यंग प्रोफेशनल हैं, तो एजुकेशन इज योर बिगेस्ट स्किल सेट एंड व्हाट यू हैव लर्न। सो जब प्रोफेशनल लेवल पे आ जाते हैं, अगर आपका कोई 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो देन एक्चुअली इट रिवर्सेस, एजुकेशन बिकम्स अ लिटिल बिट सेकेंडरी एंड योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस बिकम मोर वैल्यूएबल। लेकिन यंग एजुकेशन, यंग प्रोफेशनल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन इज काइंड ऑफ द की हाईलाइट राइट नाउ। उसके बाद प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं। अगेन प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस में भी आपने क्या लर्न किया है, उस पे आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है स्पेसिफिकली। लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है लेड 20 डिजाइन प्रोजेक्ट्स।
इन नॉन प्रॉफिट्स अक्रॉस द कंट्रीज, बड़ा स्पेसिफिक है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे एक और की बुलेट पॉइंट्स है आपके, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी डिटेल नहीं, 2-3 बुलेट पॉइंट्स ईच आपके जो भी हैं एक्सपीरियंसेस उनके हिसाब से। So what stands out of this resume is accomplished 1.3 million in clipping, free advertisement. ठीक है, that's the key point कि आपके metrics होने चाहिए, numbers होने चाहिए ताकि आपका हो जाए। अच्छा, फिर end में definitely आपके volunteer experiences होते हैं, आपकी leadership skills होती हैं, आप उसको mention करें because that is actually another stronger point जो नबील ने बताया कि आपकी जो extra activities होती हैं, वो आपकी leadership और आपकी सॉफ्ट स्किल्स को रिफ्लेक्ट करती हैं। अगर आप पार्क लॉन्च में वॉलंटियर कर रहे हैं, लाइक आप लोगों में से कई हैं जो शायद पार्क लॉन्च के वॉलंटियर्स हैं, यू कैन पुट पार्क लॉन्च वॉलंटियर एक्सपीरियंस। आपने किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया, यू कैन पुट इट ऑल दैट ओवर हियर। इसमें एक और सेक्शन हो सकता है जो कि स्किल्स का होता है, वो जनरली यहाँ पर आ जाता है या यहाँ पे आता है। दैट इज ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट जो कि आप देख सकते हैं, बट दिस इज वन सैम्पल, देयर आर मल्टीपल सैम्पल्स एज वेल अवेलेबल। इसमें एक बात मैं करना चाहता हूँ, जो हमें क्वेश्चंस मिले थे उसमें 2 क्वेश्चन थे कि रिज्यूमे के फॉर्मेट और कौन सा इंपॉर्टेंट होता है। तो रिज्यूमे के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फर्स्ट हाफ होता है रिज्यूमे का, फर्स्ट हाफ पेज लाइक दिस पेज, दिस इज द की पॉइंट जिसमें आपका काइंड ऑफ 60 सेकंड्स में जो हायरिंग मैनेजर्स होते हैं जनरली दे कहते कि यार इसको आगे लेके चलना है या नहीं लेके चलना। दैट्स वन थिंग। दूसरा क्वेश्चन आया था रिज्यूमे और सीवी के डिफरेंस क्या होता है। तो रिज्यूमे इज मोर ऑफ अ प्रोफेशनल जॉब्स के लिए होता है, और मतलब जो जो नॉर्मल लाइफ में हम लोग यूज करते हैं दैट्स रिज्यूमे। जो सीवी होता है वो करिकुलम होता है, वो इट्स मोर डिटेल्ड ओरिएंटेड, उसमें आपकी कोई पेजेस की लेंथ नहीं होती और आप उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। दैट इज यूज फॉर मोर साइंटिफिक, या आपने किसी मतलब बहुत एकेडमिक जॉब के लिए अप्लाई करना होता है। तो जस्ट बी कंसिस्टेंट। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरली अगर आपने किसी रिसर्च ओरिएंटेड जॉब के लिए नहीं अप्लाई करना तो रेज्यूमे इज सफिशिएंट, एंड रेज्यूमे एंड सीवी आर काइंड ऑफ यूज्ड वन वे और अदर। तो ये कुछ टिप्स थी जो रेज्यूमे से रिलेटेड थी। अब मैं थोड़ा सा शिफ्ट करूंगा, अपने लिंक्डइन के बारे में बताया कि व्हाट इज द रोल ऑफ लिंक्डइन इनटू ऑल दिस डिस्कशन, क्योंकि ये तो एक फॉर्मल रेज्यूमे होता है ना। तो कंसिडर लिंक्डइन एज योर ऑनलाइन रेज्यूमे, इट्स अ लाइव रेज्यूमे। So that's why I consider LinkedIn as one of the most powerful tool। और उसकी रीजन ये है कि आप लोग जब ग्रेजुएट कर रहे हैं और हम लोग जब ग्रेजुएट करते लिंक्डइन इतना नहीं था, तो हम रेज्यूमे पे ज़्यादा हम फोकस करके निकल जाते थे। लेकिन आजकल डिजिटल ऑनलाइन सोशल मीडिया, सारा का सारा जो प्रोफेशनल सोशल मीडिया है, दैट इज मोस्टली मोस्ट ऑफ द हायरिंग इज गोइंग थ्रू लिंक्डइन। लिंक्डइन के अपने जो यूजर्स हैं दे इट हैज क्रॉस 1 बिलियन प्लस, राइट। तो आप इमेजिन करें कि ऑल कंपनीज आर ऑन लिंक्डइन, ऑल रिक्रूटर्स आर ऑन लिंक्डइन। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपके पास आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल जो होती है वो तगड़ी किस्म की होनी चाहिए। मतलब ये पर्सनल ब्रांडिंग में आता है जो भी नबील ने बाकी सारे किए हैं। सो लिंक्डइन इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सनल ब्रांडिंग टूल। तो मेक श्योर यू स्पेंड सम टाइम, सम सीरियस टाइम। अगर आप सीरियस हैं जॉब हंटिंग के बारे में तो दैट इज योर ऑनलाइन रेज्यूमे। स्टे एक्टिव। उसमें यह है कि ऐसा नहीं है कि मैंने कई लोगों की देखी है कि वो बना दी प्रोफाइल और उसमें वो 5 जॉब्स पहले या कोई 10 साल पुराना सारा डाटा पड़ा हुआ है। इट नीड्स टू बी अप टू डेट, रिफ्रेश्ड, बिकॉज इट्स लाइव। दिस इज व्हाट पीपल आर सीइंग इट, ठीक है। अगर आप खुद कुछ नहीं करें, प्रमोट करें, रीपब्लिश करें, रीपोस्ट करें। मैं at my age even today I spend about 20 to 30 minutes every day on LinkedIn, क्योंकि उसमें खाली अब मैं ये नहीं कर रहा कि मेरी अपनी प्रोफाइल बना रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ यार और कौन है। and I'm sometimes potentially recruiting as well on LinkedIn, so I can do recommendations or cross reference। LinkedIn पे recommendations भी है। so that's one thing। तीसरी चीज जो है important LinkedIn की, वो ये है कि आपका नेटवर्क है। LinkedIn is your network। मतलब आपको वो आपके कॉन्टैक्ट्स इन्फॉर्मेशन आपको लिखने की जरूरत नहीं है। दैट इज योर नेटवर्क। अगर आप किसी कंपनी में अप्लाई करें या मैं किसी कंपनी में अप्लाई कर रहा हूँ पाकिस्तान में, और मैं नबील के लिंक्डइन पे जाके देखता हूँ कि यार नबील जानता है किसी और को, आई कैन गो थ्रू नबील एज वेल एज अ रेफरेंस कि यार मुझे इससे इंट्रोडक्शन करवा दें। सो इट इज अ वेरी पावरफुल नेटवर्किंग टूल बेसिकली। तो आई वांट टू एम्फसाइज दैट, क्योंकि आई एम अ बिग प्रोपोनेंट एंड मेरा ख्याल है कि दैट इज वन ऑफ द बेस्ट टूल जो कि आप अपने इन्वेस्ट कर सकते हैं टाइम अदर देन रेज्यूमे। रेज्यूमे तो चलता ही रहता है।
So with that, actually, we will go into a little bit of हमने रखा है ज़्यादा सेशन कि हम आपके क्वेश्चंस को कर देंगे, लेकिन एक जो लास्ट स्लाइड हम आपको बोथ नबील और मेरी साइड से जो आपको हम ऑप्शंस देना चाहते हैं कि क्या आप कर सकते हैं आफ्टर दिस सेशन. So there are 5 books जो कि मतलब I have learned in my last 25 years जो कि that helped me to build my soft skills and my leadership skills and that helped me to build my resume and LinkedIn, right? तो उनमें से definitely you might have heard some of them. 7 Habits of Highly Effective People, Adam Grant की एक और I think again it's a very good one. Habits is one thing that you can always hone in. और why I'm mentioning books, उसकी reason मैं अभी बताता हूँ. उसकी reason ये होती है कि I read a lot of books और sometimes ये होता है कि when you are mentioning your habits and in your interview process, you can actually think based on these books कि आपने क्या कहना है, कैसे respond करना है, and there could be some questions कि यार आप आजकल कौन सी books पढ़ रहे हैं अपने personal development के लिए. So you can at least pick maybe one of them. अगर आपने 5 पढ़ी हैं तो उनमें से कोई एक आपको अगर याद रह गई है तो keep reading some of these personal development books. तो हैबिट्स की है. ऑप्शन बी इज a fantastic book about resilience. resilience के बारे में बात होगी अभी थोड़ी सी अगर क्वेश्चन आंसर में आए हैं. और आजकल जो मैंने अभी खत्म की है वो डिटरमिन टू लीड. एक्चुअली नदा इज अ पाकिस्तानी ओरिजिन फीमेल लीडर based out of Houston जहाँ पे मैं हूँ. And I just finished it actually yesterday. So it's another very good one. It gives you a very compressed knowledge of how you should behave in work environments and leadership skills as well. बाकी ये जो नीचे वाले हैं लिंक्स ये हम आपको भी चैट में भी पोस्ट कर देंगे. बट दीज आर सम ऑफ द रिसोर्सेज जो मैं और नबील हम दोनों यूज करते रहते हैं. नबील ने अभी मेंशन किया था ये पर्सनल यूट्यूब की एग्जांपल, पर्सनल वेबसाइट की एग्जांपल, ये स्कॉलरशिप नेटवर्क का नबील is one of the admins of this one. So I would strongly recommend अगर आप मास्टर्स को परस्यू करना चाह रहे हो तो इसको ज्वाइन करें. और नबील has also shared this sample resumes. ये एक अच्छी वेबसाइट है. जॉब स्कैन एक्चुअली एक एआई टूल है जो कि एआई की ये हाइप से पहले का है, where you can put your resume and your job description and it gives you the percentage of match for the keywords. I have used it personally in my job search, so that's why I can recommend कि anybody who wants to use it, we can discuss it. Melanie Woods, she's based out of Houston. ये एक HR professional है and I strongly recommend following her on LinkedIn. She makes small YouTube videos for LinkedIn profiling and how to improve your chances for hiring and recommendations. Fatima Mirza is based out of West Coast in USA and she runs Career Tuners. She is also very good focal point influencer on LinkedIn as well as आप उनको सब्सक्राइब कर लें. I am subscribed. There is an email. You can get some tips on how to improve your resume, your interview skills, and so on and so forth. So we are giving you all these things. We will share it in the chat window और फिर आगे बात चलती है. तो ये तो we are finishing up basically the presentation portion. हमारे contacts भी आपको मिल जाएंगे. If you want to note them, reach out to Nabil. He's available on LinkedIn. I'm available on LinkedIn. अगर आप लोग इससे कुछ और नहीं करते तो एटलीस्ट आई वुड बी एक्सपेक्टिंग कि एक आप लिंक्डइन की रिक्वेस्ट कम से कम जरूर भेजेंगे ताकि अगर आपको कोई मसला होगा तो आप हमसे बातचीत कर लेंगे. तो विद दैट बीइंग सेड आई कैन स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन एंड आई विल ओपन अप द चैट विंडो फॉर ऑल द क्वेश्चंस. नबील आप अगर इन द मीन टाइम आपने कुछ देखे हैं, आप कुछ किसी को एंटरटेन करना चाहते हैं क्वेश्चंस, नबील आप अनम्यूट कर लें. ओके, थैंक यू वेरी मच सुभान. आई थिंक बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव 2 स्लाइड्स आपने ऐड की थी. मैं सबसे पहले लास्ट वाले का आंसर देता हूँ क्योंकि उसमें उन्होंने मुझे डायरेक्टली कॉल किया है, तो आई थिंक मैंने आंसर देना ही है इसका, तो लेट मी आंसर. श्योर. में आप इसको इस तरह से समझें, बहुत सारे स्टूडेंट ये परेशान होते हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आ रही है तो हमारी जॉब्स नहीं रहेगी, एआई जो है वो हमारी जॉब्स ले लेगा. तो ऐसा नहीं होता. फॉर एग्जांपल, जिस टाइम पे टाइपराइटर थे उस टाइम पे कंप्यूटर आया तो बहुत सारे लोग सोच रहे थे जो टाइपराइटर यूज करते थे कि भाई कंप्यूटर आ गया तो हमारी बहुत सारी जॉब ले लेगा. फिर इंटरनेट आ गया, फिर इस तरह से
लैपटॉप्स आ गए, अब इस तरह से एआई आई भी है। मेन चीज़ देखें, टेक्नोलॉजी ग्रो होती रहेगी। आपने टेक्नोलॉजी के साथ अपने स्किल्स को अपडेट कर देते रहना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल इसको इमेजिन ऐसा करें, जो टाइपराइटर के दौर में लोग थे और कंप्यूटर आने के बाद उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया कंप्यूटर की तरफ, तो उनको मसला हुआ और उनको होगा ऑब्वियसली। तो आप एज अ स्टूडेंट आपने ये सोचना है कि किस तरफ डायरेक्शन पे दुनिया जा रही है, और उसके लिए आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी स्किल्स, जो भी सॉफ्टवेयर है, स्किल्स का मतलब जब हम बात कहते हैं ना, तो हम दो स्किल्स की बात कहते हैं। स्किल्स का मतलब पहली ये चीज होती है अपने आपके टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो आपको कैड डिजाइनिंग अच्छी आनी चाहिए। आपको मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस पता होने चाहिए कैसे होती है, और आपको मैन्युफैक्चरिंग और मशीन यूज करनी आनी चाहिए। इसी तरह से आपके सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं कि आप किस तरह से बात कर रहे हैं, किस तरह से अपनी चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, वही चेक करते हैं कि भाई आपकी टेक्निकल नॉलेज क्या है। आपकी टेक्निकल, अगर फॉर एग्जांपल दो लोग आए हुए इंटरव्यू के लिए, दोनों की टेक्निकल नॉलेज सेम है, लेकिन एक जो है वो थोड़ा सा हम्बल है, वो बात को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है, जबकि दूसरा थोड़ा सा रूड है, वो उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो जो ज्यादा वो है प्रोफेशनल, उसकी हायरिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये दोनों स्किल्स आपको साथ लेके चलने पड़ेंगे। तो इसलिए ये घबराने की जरूरत नहीं है कि एआई आ गया तो हमारी जॉब चलेगी। फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी आने के बाद कंटेंट राइटर, लोग बोल रहे हैं कि कंटेंट राइटर की जॉब चली जाएगी। इसको आप इस तरह से देखें कि कंटेंट राइटर का जो टाइम है, फॉर एग्जांपल पहले हम कंटेंट राइटर को दे देते कि 1000 वर्ड्स लिखिए, वो 2 दिन लेता था। अब चैट जीपीटी की वजह से वो कंटेंट राइटर एक दिन में 2 कंटेंट लिख सकता है। तो आप इसको इस तरह से समझे कि टेक्नोलॉजी आपको फैसिलिटेट करती है, अगर आप उसका पॉजिटिव यूज करें। दूसरी चीज, आपने कंपनी के बारे में पूछा। हमारा कंपनी का विजन बड़ा सिंपल है। वी वांट टू डिजाइन अ करिकुलम दैट विल प्रोड्यूस पॉलीमैथ। ठीक है, पॉलीमैथ जिन्हें नहीं पता उनको थोड़ा सा बता देता हूँ। पॉलीमैथ वो लोग होते हैं जो एक से ज्यादा फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इलॉन मस्क आजकल के दौर में अगर आप देखें, और अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री में चले जाएं, तो आप सबने पढ़ा होगा अल ख्वारिज़मी थे और इब्नुल हैथम थे, ये सारे लोग पॉलीमैथ थे। तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम और एनवायरनमेंट डेवलप करें जो इस प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर सके कि बच्चे जो है वो पॉलीमैथ बन सके बड़े होके। सही है। नहीं, आगे दैट्स गुड। मैं 2-3 क्वेश्चंस पढ़ रहा था। आपने नबील, आई थिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपने अच्छा किया, मेंशन किया, एंड इट्स नथिंग टू वरी अबाउट। और इसी वजह से जो मैं एक उसमें ऐड ये करूँगा कि सॉफ्ट स्किल्स पे फोकस रखें, ठीक है? टेक्निकल स्किल्स अब एआई और बाकी सारी चीज़ें से हो जाएँगी, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स आपकी जौन-सी है ना, वो कोई नहीं रिप्लेस कर सकेगा। एक और 2-3 क्वेश्चन्स आ रहे हैं, क्योंकि आप लोग फ्रेश हैं, तो क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आपके पास मैट्रिक्स अगर नहीं है तो कैसे किया जाए, या आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो हाउ डू यू ऐड योर एक्सपीरियंस टू द रिज्यूमे। तो उसमें एक्चुअली मैं कुछ दिन पहले ही ये फातिमा मिर्जा, जिनको मैंने मेंशन किया है, शी रोड एन ईमेल एंड स्मॉल क्लिप इट, कि अगर आपके पास नहीं है एक्सपीरियंस, तो आप अपना जो जो वॉलंटियर एक्सपीरियंस है या आपका कोई और एक्सपीरियंस है, आप उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, ठीक है? आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व की है, ठीक है? एवरीबॉडी इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्वर। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, तो आपको उसको फ्रेम ऑफ माइंड को लेके आना पड़ता है, आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप उसको 2-3 बुलेट्स में प्रॉब्लम को डिफाइन कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम था एक नॉन प्रॉफिट में। आई एम जस्ट पिकिंग एन एग्जांपल, कि फर्ज़ करें कि आपके स्कूल में कोई प्रॉब्लम हो रही है या आपकी यूनिवर्सिटी में कोई चीज़ नहीं काम कर रही, तो आपने उसको सॉल्व किया एक सर्टेन टाइम फ्रेम में, और दैट इज़ योर एक्सपीरियंस। आप माने ना माने, वो एक्सपीरियंस आपने गेन किया है हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है? किसी चीज़ को आपने बेहतर बनाया है, किसी चीज़ को फास्टर बनाया है, तो आपके पास बहुत सारे आपके नॉर्मल लाइफ में इतनी एग्ज़ाम्पल है जिसको आप क्वांटिफ़ाई कर सकते हैं। सो थिंक हार्ड, आई गेस। अगर आपके मैट्रिक्स नहीं आ रहे या कोई नहीं आ रहा, तो उन उन थिंक हार्ड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। तो एक तो ये पॉइंट, मेरा क्वेश्चन मैंने 2 क्वेश्चन्स को मैंने समराइज़ किया है। और मैं इसी आपके पॉइंट में से ऐड कर रहा हूँ सुभान, यप, कि आजकल के दौर में ना, हमारे टाइम पे खासतौर पे सुभान के दौर में ये मुश्किल था कि जॉब या इंटर्नशिप। आजकल के दौर में तो बहुत आसान हो गया है कि अगर आपके पास नहीं है, आप अपनी जो भी जिस सिटी में, वहाँ पे जो इंक्यूबेशन सेंटर है वहाँ जाएं। बहुत सारे स्टार्टअप हैं, स्टार्टअप के पास बेचारों के पास पैसे नहीं होते, वो रिसोर्स ढूंढ रहे होते हैं। आप जाएं उनके पास और उनके पास इंटर्नशिप करें,
उससे आपको ना, क्योंकि छोटा स्टार्टअप होता है तो वो काम आपसे ज़्यादा लेता है, तो आपके जो स्किल्स होते हैं वो ज़्यादा तेज़ पॉलिश होते हैं कंपेयर टू एक बड़ी कंपनी। तो आप अपने, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने नहीं किया, आपके 3 साल गुज़र गए, 4 साल गुज़र गए, तो दिस इज़ द वे कि अगर आपको कहीं जॉब भी नहीं मिल रही, तो आप एटलीस्ट स्टार्टअप को जॉइन कर लें और वहाँ से स्किल्स लें और आहिस्ता-आहिस्ता ग्रो करते जाएँ अपने आप को। सही। अम, तो ये मैंने लिंक्स किसी ने पूछा था कि लिंक्स तो मैंने पोस्ट कर दिए हैं, हर एक के लिंक्स, इट शुड बी अवेलेबल टू एवरीवन। यू गाइस वांट टू, ओके, ओके, लिंक्डइन, क्वेश्चन आ रहा है, कैन यू एक्सपैंड ऑन हाउ वी कैन यूज लिंक्डइन टू स्टैंड आउट फ्रॉम अदर एम्प्लॉइज और अनपेड इंटर्नशिप्स। अच्छा, इंटर्नशिप्स का एक्सपीरियंस, ये एम्प्लॉयर को ये नहीं पता कि आप पेड हैं अनपेड है, डजंट मैटर। आपका एक्सपीरियंस, आपने क्या लर्न किया इंटर्नशिप से, दैट मैटर्स। वो पेड है अनपेड है, नोबडी केयर्स। लिंक्डइन पे कैसे स्टैंड आउट करना है, उसमें ये है कि आपके कीवर्ड्स होने चाहिए। और लिंक्डइन की एक छोटी सी टिप ये है कि लिंक्डइन गिव्स यू व्हाट आपने कर लिया है, लेकिन लिंक्डइन की जो हेडर है ना, जो टॉप हेडर और आपकी जो एक समरी है, दे आर द टू की इंपॉर्टेंट थिंग्स। आपकी प्रोफाइल पिक्चर अच्छी प्रोफेशनल होनी चाहिए। वो ये नहीं है कि सॉकर खेलते हुए या क्रिकेट खेलते हुए आपने वो तस्वीर लगा दी। इट शुड लुक प्रोफेशनल। आपका जो बैकग्राउंड इमेज है, यूज दैट। आपका जो एक बेसिकली जो फ्रंट एंड है, मग शॉट कहते हैं उसको, तो वो सारी जो आपका फ्रंट एंड है लिंक्डइन का, दैट शुड बी स्टैंड आउट। कीवर्ड्स होने चाहिए। द कीवर्ड्स एंड योर स्किल्स शुड मैच जो आप जिस जॉब के लिए जाना चाह रहे हैं। और दूसरी बात ये कि यू नीड टू स्टे एक्टिव इन योर फील्ड। अगर आप फॉर एग्जांपल एनर्जी सेक्टर में जाना चाह रहे हैं, तो यू शुड बी फॉलोइंग एनर्जी सेक्टर की जो कंपनीज। आप टेस्ला में जाना चाह रहे हैं, यू शुड बी फॉलोइंग टेस्ला। यू शुड बी लुकिंग एट भाई टेस्ला में क्या हो रहा है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको खुद से कर सकते हैं आप। एक क्वेश्चन आ रहा है नबील, मे बी यू कैन आंसर ऑन दिस वन, कि हाउ कैन इजीली सक्सेसफुल इन इंटरव्यूइंग व्हाइल अप्लाइंग फॉर अ मास्टर्स इन यूनिवर्सिटीज अब्रॉड। आप आपका एक्सपीरियंस मेरा ख्याल है यूनिवर्सिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा रहता है, तो यू वांट टू हैंडल दैट एस्पेक्ट। अच्छा, अगेन इंटरव्यू कोई भी हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो आपकी किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, एक सेम चीज़ है कि जो इंटरव्यू लेने वाला होता है, इंटरव्यूअर, वो ये देख रहा होता है कि जिस स्पेसिफिक जॉब के लिए मैंने वो दिया था ऐड, उससे रिलेवेंट आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल मास्टर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो मास्टर फॉर एग्जाम्पल एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो जब वो इंटरव्यू ले रहा होता है तो वो ये देख रहा होता है कि आपका मेन मोटिवेशन क्या है, और आपने खुद किस-किस प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है, जिससे आप ये मोटिवेट कर रहे हैं कि हाँ, मैं इस फील्ड में आगे ग्रो हो जाऊँगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग स्कॉलरशिप या जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि यार पाकिस्तान से हमें भागना है, वो उन्हें मास्टर्स करना होता है। तो उन्होंने की होती है फॉर एग्जाम्पल सिविल इंजीनियरिंग, वो अप्लाई कर देते हैं, मास्टर्स से नहीं आए। अब आपका कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, तो उसको आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे होते हैं इंटरव्यूअर के सामने। तो ये चीज़ आप ख़्याल रखें। अगर फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे मैंने स्टूडेंट देखे हैं कि उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की, उसके बाद एआई में मास्टर्स किया, लेकिन उन्होंने उस गैप को रिमूव कैसे किया कि उन्होंने यूडेमी हो गया, ईडीएक्स हो गए, यहाँ से कोर्सेज किए डिफरेंट डिफरेंट, और उन कोर्सेज की सर्टिफिकेशन लगाई और छोटे-छोटे कैगियल है, इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहाँ पे छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए, जिससे उन्होंने ये बता दिया कि ठीक है, मैंने सिविल इंजीनियरिंग कर ली थी, लेकिन मेरा पैशन इंडस्ट्री में पता चला कि एआई की तरफ है, तो मैंने ये वाले कोर्सेज किए और इस तरह के प्रोजेक्ट्स किए, जिससे मुझे लगता है कि मैं आगे और ज़्यादा ग्रो हो जाता हूँ। तो ये आपके जो चांसेस होते हैं ना कि उस स्पेसिफिक चीज़ से रिलेटेड कितनी इन्फॉर्मेशन है और कितनी इफेक्टिवली आप उस चीज़ को आगे बता रहे हैं अपने सामने वाले को, तो वो आपके चांसेस बढ़ा देता है। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ और ऐड मैं करूँगा सुभान, हम्म। लिंक्डइन से रिलेटेड, कि लिंक्डइन में लोगों ने पूछा कि किस तरह से स्टैंड आउट वहाँ पे कर रहे होते हैं। एक चीज़ इसको इस तरह से देखेंगे, फॉर एग्जांपल जब मैं आपके सामने नाम लेता हूँ जुनैद अकरम का, तो आपके ज़हन में एक इमेज बनता है कि हू इज़ जुनैद अकरम, वो किस टाइप के कंटेंट के ऊपर बात कर रहा है, राइट? फिर इसी तरह से अगर मैं आपके सामने लेता हूँ नाम मुफ्ती तारिक मसूद का, तो आपके ज़हन में 4 शादियाँ आ जाती हैं, ठीक है? जो लोग सुनते हैं उन्हें, राइट? तो अब आप देखें कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप मार्केटिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या मार्केटिंग का आपका एक्सपीरियंस है, तो कोशिश करें कि अपने लिंक्डइन पे मार्केटिंग से रिलेटेड स्टफ को पोस्ट करें। उसके बारे में लिखें कि आप क्या जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल वायरल मार्केटिंग की टिप्स क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल आपने कोई वायरल मार्केटिंग से रिलेटेड कोर्स किया, तो आपने उसके बारे में कोई समरी बना के लिख दी कि ये चीज़ें मैंने सीखी हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि कोका कोला ने एक स्पेसिफिक न्यू मार्केटिंग की थी, तो आपने एक छोटा-सा अपना वो बना के मैंने ये चीज़ देखी, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग सी लगी, तो दूसरे ब्रांड भी ये कर सकते हैं। तो जब आपकी सीवी देख के कोई आएगा आपके लिंक्डइन पे, तो उसे ये
आइडिया हो जाएगा कि आपको डोमेन नॉलेज है। एक्चुअली अगर आप सामने वाले को ये बता दें ना कि आपके पास डोमेन नॉलेज है, तो आपका काम 95% हो जाता है कंप्लीट मेरे ख्याल से। सही, नहीं नहीं, दैट्स अ गुड वन। डोमेन नॉलेज, आपकी जो बात है ना कि आप प्रूव कैसे करेंगे कि आपकी स्किल्स हैं, और लेट मी टेक टू क्वेश्चंस जो और इसमें आ रहे हैं कि रिज्यूमे के फॉर्मेट के हिसाब से कि व्हाट इज द बेस्ट फॉर्मेट। फॉर्मेट के लिंक्स मैंने शेयर किए हैं जो नबील के पास भी हैं, और अगर आपको कोई वन ऑन वन फॉर्मेट चाहिए तो मेरी सजेशन ये कि आप लिंक्डइन पे नबील से कनेक्ट कर लें या मेरे से कनेक्ट कर लें, तो वी कैन हैव अ डिस्कशन कि आपके केस में क्या होता है। लेकिन इन जनरल मेरा जो क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं कि फॉर्मेट फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए और कंपनीज के लिए क्या होना चाहिए। तो फॉर्मेट कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए ये होगा या इसके लिए ये होगा या इसके लिए ये होगा। इट शुड बी अ वेरी सिंपल वन पेज रेज्यूमे, क्योंकि जब मैं हायरिंग कर रहा होता हूँ या मुझे कोई रेज्यूमे आता है और अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं और आपने मुझे 3 सफ़े का रेज्यूमे लिख दिया, तो मैं आई एम नॉट गोइंग टू, मेरे पास पहली बात मेरे पास टाइम नहीं है। नंबर 2, देन आई सी कि आपने सारा उसमें ना जो वो हौच-पौच और बीएस सारी डाली हुई है, क्योंकि उसमें दैट मीन्स यू आर जस्ट फिलिंग अप द मटीरियल। अ फ्रेश ग्रेजुएट का रेज्यूमे सिंगल पेज होना चाहिए, वन पेज, सिंपल, जो आपको दिखाया था, एजुकेशन क्या है, की बुलेट पॉइंट्स, आपने इंटर्नशिप या कोई वॉलंटियर एक्सपीरियंसेस जो भी किए हैं, आपने वो उसमें क्या किया। वो जो मैं एज़ अ हायरिंग मैनेजर देखता हूँ, मैं ज़्यादा एक्चुअली I did quite some mistakes on hiring just on technical skills, and I learned my lesson hard way कि कभी जब आप टेक्निकल स्किल्स खाली देख के किसी को हायर करते हैं, तो दे आर नॉट सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म। तो अब मैं जब हायर करता हूँ आजकल, तो मैं ये देखता हूँ कि आपकी पैशन क्या है? हाउ व्हाट इज़ योर एनर्जी लेवल? क्योंकि टेक्निकल स्किल्स में आपको आप भी सीख लोगे, मैं भी सिखा सकूँगा, वो दैट इज़ ईज़ी। वो तो आप किसी वो आप आपको फ़र्ज़ करो मैं हायर करता हूँ, आपको ये शौक, आपको पाइथन नहीं आती। तो पाइथन यू कैन लर्न फ्रॉम यूट्यूब और coursera और 10,000 अदर साइट्स हैं। लेकिन इफ यू आर ईगर टू लर्न पाइथन, दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग इन। तो वो जो आपकी एक एक हंगर फॉर लर्निंग है, और एक आप में एक कहते हैं ना वो अ, एक चिंगारी होनी चाहिए कि आप लर्न करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एंड यू कैन टेक रिस्क्स एंड यू हैव कॉन्फिडेंस। यहाँ पे एक चीज़ है, ये जो एक बुक मैंने मेंशन की थी लीडरशिप वाली, उसमें लिखा हुआ है कि कॉन्फिडेंस और कॉम्पिटेंस को अलग-अलग करके रखें। कॉम्पिटेंस इज़ व्हाट नबील वाज़ सेइंग कि डोमेन नॉलेज होनी चाहिए। येस, कॉम्पिटेंस, डोमेन नॉलेज गिव्स यू कॉन्फिडेंस। लेकिन इंटरव्यू या रिज्यूमे वो आपका कॉन्फिडेंस देखता है। कॉम्पिटेंस तो होगी, लेकिन वो आपका कॉन्फिडेंस देखता है। और दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि ये जो पर्सनल ब्रांड की हम बात कर रहे हैं और रिज्यूमे की बात कर रहे हैं, रिज्यूमे इज़ जस्ट एन एंट्री टिकट टू द होल करियर प्रोसेस, करियर बिल्डिंग प्रोसेस। सो डू नॉट अस्यूम कि आपके रिज्यूमे पे आपको कोई जॉब दे देगा। रिज्यूमे इज़ जस्ट अ एंट्री टिकट कि आपसे हमें आप अच्छे लगे हैं, लेट्स टॉक फर्दर। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स दैट गोज़ इनटू द हायरिंग प्रोसेस इटसेल्फ, और उसके लिए आपको पेशेंस और थोड़ी-सी रेज़िलियंस चाहिए। पेशेंस इस सेंस में कि आप स्टे कंसिस्टेंट, ठीक है? रेज़िलियंस ये है कि आप अगर किसी ने आपको लाइक मैं या नबील को आप हेल्प करते हैं, तो स्टे कंसिस्टेंट अगर आपको हमसे फीडबैक नहीं मिल रही, क्योंकि हम लोग भी बिज़ी होंगे। लेकिन सेम थिंग विद एचआर्स एज़ वेल, थोड़ी-सी पेशेंस, थोड़ी-सी रेज़िलियंस, आपको कई रिजेक्शंस भी मिलेंगी। बी रेडी फॉर दैट। हमें भी मिलती हैं रिजेक्शन। नबील को वी हैव लॉट ऑफ फेलियर्स, वो हम डिस्कस करेंगे किसी और टाइम में या वन ऑन वन, बट बी रेडी फॉर दैट एज़ वेल। सो आई जस्ट वांट टू गिव यू तो a lot of things ke be ready for it how it looks like. Nabil, any other questions, or Tala, do you want any ये other questions यहाँ that we पे haven't answered? क्वेश्चन है क्या, व्हाट इज द बेस्ट अप्रोच टू रीच अ कंपनी फॉर जॉब। यहाँ पे एक चीज ये है कि सुभान ने भी अपने उसमें बताया था कि अगर आपने रीच करना है तो वन ऑफ द बेस्ट वे इज कि आप ये देखें, फॉर एग्जांपल आप जीकी से आप पढ़ रहे हैं और आपने जी में जाना है, तो आप क्या करें, लिंक्डइन पे जाएं, आपको अगर सुभान मिलते हैं, सुभान से कनेक्ट करें और सुभान से डिस्कस करिए मैं कैसे जा सकता हूँ। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट वे। अगर आप, और यही मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा बेस्ट वे है कि अगर आपने कंपनी को रीच करना है, क्योंकि अलमनाई जैसे एनईडी का मैं हूँ, तो मैं जब एनईडी के अलमनाई को किसी को कांटेक्ट करता हूँ ना कि यार मैंने एनईडी से ग्रेजुएट किया है, मुझे मैं इस कंपनी में जाना चाह रहा हूँ, मैंने देखा आप हैं, तो आप काइंडली मुझे गाइड कर दें, तो ज्यादातर आपके अलमनाई ना आपको गाइड कर देते हैं। एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है अलमनाई के पास है, जैसे जीकी के सुभान है, तो इनको मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि अगर कोई सेकंड ईयर या फाइनल ईयर का बच्चा मैसेज करेगा ना
कि सर मुझे इस चीज़ में हेल्प चाहिए। तो जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट कनेक्शन एज़ अ पाकिस्तानी तो होता ही है, लेकिन जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट यूनिवर्सिटी कनेक्शन आपको वो थोड़ा-सा हेल्प आउट कर देते हैं। तो ये दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे। और इसके अलावा ऑब्वियसली जा उनके करियर पेजेस पे जाएँ, वहाँ पे उन्होंने दिया हुआ होता है, वहाँ पे जाके अप्लाई करें और जो-जो चीज़ें जिस तरह से हमने बताई है उस तरह से करने की कोशिश करें, तो आप जो है वो आगे स्टैंड आउट कर जाएँगे। सही है। और How to start earning a bit of experience as an A-level student in an internship or something similar? Okay, that ये एक आया हुआ है, I don't know ये yet to be honest, there is no age limit in this age. आप अर्निंग और अपना रिज्यूमे, प्रोफाइलिंग, पर्सनल ब्रांडिंग, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, ठीक है? मतलब आई कैन शेयर माय पर्सनल थिंग्स के आई हैव 2 डॉटर्स और मेरी जो छोटी वाली डॉटर है, शी इज़ इन हाई स्कूल एंड शी हैज़ मोर इन्फ्लुएंसर्स देन मी प्रोबब्ली एट दिस पॉइंट, ठीक है? तो देयर इज़ नो एज लिमिट। आपको सोशल मीडिया और डिजिटल वर्ल्ड में द होल वर्ल्ड इज़ योर कैनवस बेसिकली, तो आपकी कोई एज लिमिट नहीं है। और अगर आप मैं एक चीज़ आप एक पहले एक और भी आया था कि अगर कोई गैप आ जाता है बीच में, ठीक है? वेरी गुड क्वेश्चन, गैप्स आते हैं, लोगों की पर्सनल लाइफ़्स चेंज होती हैं, या आपके पास समर का गैप आता है। एक जो मेरा फेवरेट क्वेश्चन फ्रेश ग्रेजुएट से जो मैं पूछता हूँ, वो ये होता है कि आपने अपना समर कैसे टाइम गुज़ारा, ठीक है? आपने कोई कोर्स किया, कोई आपने स्किल्स लर्न की, कोई आपने अपनी क्या व्हाट डिड यू हाउ डिड यू स्पेंड योर टाइम? ये मैं मेरा फेवरेट क्वेश्चन होता है जो मैं अपने जो यंग ग्रेजुएट्स होते हैं उनसे पूछता हूँ, इंटर्नशिप के लिए आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं। बिकॉज़ दैट टेल्स मी कि डू दे हैव अ सेंस कि दे कैन लर्न अ न्यू स्किल्स। आप अपनी अपनी स्किल इन्वेंटरी करो कि पिछले जनवरी 2023 से लेकर मई तक आपने कोई एक नई स्किल डेवलप की है, कोई एक नई चीज़ लर्न की है। और एंड दैट डज़न्ट मीन कि उसमें आपको मतलब आप यू नीड टू बी डोमेन एक्सपर्ट, पाइथन या कोई और ऐसा, बट डिड यू लर्न समथिंग न्यू? I learned. I probably Nabil might have learned a few things as well, but that's what it needs to be. तो अर्निंग और लर्निंग का कोई टाइम नहीं होता. It goes from birth till death. As मैंने कहा कि हम लोगों के 100 साल का अगर आप होराइजन रखें, तो पहले 25 साल हम एक्टिव लर्निंग, एक्टिव डेवलपमेंट हो रही होती है. 25 टू 65 में हम एक्ट कर रहे होते हैं, हम अर्न कर रहे होते हैं, हम ग्रो कर रहे होते हैं। और फिर 65 या जो भी आपकी एज है, उसके फिर आप पे बैक होता है कि आपने जो लर्न किया है, वो आप वापस कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं सोसाइटी में। सो अगेन इट्स अ साइकिल ऑफ लाइफ बेसिकली, दैट्स व्हाट आई कैन से। एक चीज़ मैं यहाँ पे टॉपिक पे डिस्कस करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं पाकिस्तान में स्पेसिफिकली देख रहा हूँ ये चीज़, कि पाकिस्तान में बहुत सारे फ्रेश ग्रेजुएट्स ना अपना स्टार्टअप करना चाह रहे हैं। देखिए, पहली चीज़ ये ज़हन में रखें कि हर चीज़ हर बंदे के लिए नहीं है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जो है वो घोड़े से बोलें कि वो स्विमिंग करे, तो कितना भी अच्छा हो वो स्विमिंग नहीं कर सकता। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, राइट? बहुत सारे लोग सिर्फ़ बज़वर्ड देख के स्टार्टअप स्टार्टअप करना चाहते हैं। मेरी रिकमेंडेशन, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी लोगों का डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने स्टार्टअप करना भी है, तो आप सबसे पहले कम से कम भी 3 से 4 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस लें। उससे आपको 2-3 फ़ायदे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाह रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर डेवलप अगर 3 से 4 साल किसी सॉफ्टवेयर हाउस में कर लेते हैं, तो आपको पूरा साइकिल समझ में आ जाएगा कि टीम कैसे बनती है, टीम मैनेज कैसे होती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे होती है, कौन से लेटेस्ट टूल्स मौजूद हैं, जिनको यूज़ किया जाता है सॉफ्टवेयर को एग्ज़ीक्यूट करने के लिए और स्केलिंग करने के लिए। फिर उसके बाद अगर आप और फिर ऑब्वियसली आपका नेटवर्क भी बन जाता है कि जो अच्छे डेवलपर्स होते हैं, जो अच्छे मैनेजर होते हैं, वो आपको जान जाते हैं, तो आपको पता होता है और फिर आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं ना, तो उसके चांसेस ऑफ फेलियर कम होते हैं क्योंकि स्टार्टअप के इटसेल्फ वैसे भी ना चांसेस ऑफ फेलियर 99% है वर्ल्ड वाइड, ठीक है? तो उसमें अगर आप फॉरेन फ्रेश ग्रेजुएट जिसमें आपको कुछ आता ही नहीं है लिव पे, तो आपके चांसेस और बढ़ जाएँगे फेलियर के। 100 तो ए ये गन हो एक जाता छोटी-सी रिकमेंडेशन तो ये छोटी-सी एक रिकमेंडेशन है, मैंने बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ स्टूडेंट्स को ये करते हुए क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो लेकिन वो एक्सेप्शनल होते हैं और उनका फैमिली बैकग्राउंड यू डोंट नो व्हाट इज़ देयर फैमिली बैकग्राउंड। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा बच्चा है ना, अगर मेरा बच्चा अंडरग्रेड की बात करता है, तो शायद वो कर जाए क्योंकि उसे पता है कि वो बाप को बचपन से देखता हुआ आ रहा है कि बाप ने इस तरह की फ़ुज़ूल हरकतें कर रहा है, कभी जो है बहुत ग्रो हो जाता है, कभी वो नीचे हो जाता है, तो वो यूज़्ड टू हो गया है, राइट? इसी तरह सुबहान के जो बच्चे हैं, लेकिन जैसे जब मेरे फादर थे फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे फादर ने कोई बिज़नेस नहीं किया था, ठीक है? तो मेरी अपब्रिंगिंग अलग हुई है। हो सकता है आपकी अपब्रिंगिंग अलग डिफरेंट तरीके से हुई हो, तो थोड़ा-सा टाइम दें और ज़िंदगी बहुत बड़ी पड़ी हुई है। कोई चीज़ आपसे छूट नहीं जा रही।
कि आपकी ट्रेन छूट जाएगी अगर अभी आपने नहीं किया। तो सही। अपने आप को पहले प्लान करें, प्रिपेयर करें और फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करें। या नहीं, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। आई वांटेड टू टच बेस, क्योंकि आजकल बहुत हाई पैकेज स्टार्टअप भी है, वो है। अपना स्टार्टअप नहीं करें, आप किसी का स्टार्टअप अगर है, लाइक अगर कोई एक्सपीरियंस लोग हैं, आप उनमें बिल्कुल जाएं, एक्सपीरियंस करें। एंटरप्रेन्योरशिप है। मैं आई एम डिफरेंट मॉडल, नबील का डिफरेंट पाथ है। अपने नबील ने स्टार्टअप किया था, मैं 25 साल के बाद अब स्टार्टअप को काइंड ऑफ, आई डोंट से कि मैं स्टार्टअप, आई एम अ कॉर्पोरेट गाय। मैं मतलब जॉब वाला बंदा हूँ बेसिकली, दिहाड़ी वाला कह लें। तो वो उसका हर एक का डिफरेंट माइंडसेट होता है, रिस्क लेवल टॉलरेंस डिफरेंट होती है। तो आई टोटली एग्री, बहुत अच्छा पॉइंट नबील ने मेंशन किया है कि डू नॉट जंप इनटू द हाइप। थिंक आप क्या सीखना चाहते हैं, ठीक है? एक दो क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर हमारे कोई क्वेश्चंस आप यहाँ पे हम आंसर नहीं कर सकते, आई कैन स्टे अ लिटिल बिट लॉन्गर इफ यू वांट। हम वी कैन स्टे ऑफलाइन विदाउट रिकॉर्डिंग और एनीथिंग लाइक दैट। और अगर आपको नहीं कोई आंसर हो रहा हमारे इतने क्वेश्चंस में, क्योंकि वी आर टॉकिंग सो मेनी डिफरेंट टॉपिक्स, तो प्लीज रीच आउट ऑन लिंक्डइन। एक दो क्वेश्चन इसमें आए हैं। इसमें एक तो ये कि कोल्ड कॉलिंग का, आई थिंक somebody was asking कि कोल्ड कॉलिंग रिक्रूटर्स, कोल्ड कॉलिंग रिक्रूटर्स, मैं मेरे हिसाब से अगर आपकी बहुत डेस्परेट सिचुएशन है तो या यू डेफिनेटली गो फॉर इट। लेकिन जनरली आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि रिक्रूटर्स आपको कॉल करें। दैट्स वेयर आई वांट यू टू गाइस टू बी, ठीक है? वो आपके फ्रेश में नहीं राम आएगा। इकबाल का शेर सुनाया था ना मैंने, इसलिए सुनाया था। वो सही शेयर था आपका, बिल्कुल। तो कोल्ड कॉलिंग कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा बेहतर तरीका ये होता है कि आप अपने नेटवर्क गेन करें और अपना नेटवर्क बढ़ाएँ, ताकि वो पार्क लॉन्च के इवेंट्स हों, कोई और इवेंट्स ऐसे जो आपके मतलब यूनिवर्सिटी अरेंज करी है, तो गो फॉर इट। एक एग्ज़ाम्पल मैं ये देता हूँ कि जब मैं जीआईके में था, हमारे ट्यूसडे को 11 से 12 बिल्कुल लंच से पहले 1 घंटा होता था, जिसमें वो इंडस्ट्री के लोगों को बुलाते थे ऑडिटोरियम में। इट्स ओपन इवेंट और उसमें एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्री पीपल यूज्ड टू कम। लेकिन अटेंडेंस जो होती है 10 लोग होते थे। हॉल पूरा 200 का है, 10 लोग होते थे। तो लेकिन वो आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव सुना रहे होते थे, वो अपनी स्टोरी सुना रहे थे। सो अवेल ऑल दोस अपॉर्चुनिटीज एज मच एज यू कैन। एक और क्वेश्चन आई हैव मेंशन अबाउट जीपीए ऑन रिज्यूमे। I, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन, आई मीन आई डू नॉट लुक टू मच इनटू जीपीएस टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जीपीएस आर रिलेटिव, वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरिएशन भी होती है। तो आई पर्सनली डू नॉट लुक इनटू इट, बट आई नो कि कुछ जॉब्स होती हैं, स्पेशली अगर आपने मास्टर्स के लिए या स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना है, तो दे डू लुक इनटू योर जीपीए। या आप इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं तो एक मिनिमम जीपीए रिक्वायरमेंट होती है जो कि आपको मीट करनी होती है। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट्स पता हैं एंड यू थिंक इट वर्क्स, देन you should go for that. You know, it depends. Or Tala or Nabil, any other questions we missed or? तो मेरे ख्याल से तो हमने कोशिश की है कि सारे क्वेश्चंस को हम आंसर कर दें। एक क्वेश्चन है वो थोड़ा समझ में नहीं आया कि हम रनिंग माय स्टार्टअप एंड आउटसोर्सिंग माय प्रोजेक्ट्स एंड फेल समटाइम बिकॉज ऑफ गेटिंग आउट ऑफ डोमेन प्रोजेक्ट्स। तो इसके लिए देखें, अगर आप कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो दो चीज, अगर स्टार्टअप कर ही रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आपकी टारगेट ऑडियंस डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना सकते जो सबको बेचें। फॉर एग्जांपल, एप्पल कभी भी ये नहीं बोलता कि मैं ऐसा मोबाइल बना रहा हूँ जो एक गरीब भी खरीद सके और एक अमीर भी खरीद सके। खाड़ी ऐसे कपड़े नहीं बनाता। तो ये बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट टाइम फाउंडर, मैंने भी ये गलती की है, बहुत सारे लोगों को गलती करते हुए ये देखा है कि जब वो प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, तो वो चाहते हैं कि सब लोग खरीद लें। ऐसा नहीं हो सकता। आपने सोचना है कि आप क्या कर सकते हैं, आपके स्किल सेट क्या है, क्या टारगेट ऑडियंस है, और बस उसी टारगेट ऑडियंस को देखते हुए आपने अपना काम करना है, क्योंकि वो आपको हेल्प करता है प्राइस की सिलेक्शन में, वो आपको हेल्प करता है आपकी मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग के ऊपर, और वो आपको हेल्प करता है कि किस तरह के लोग आपको चाहिए अपनी टीम के अंदर। तो ये मेरे ख्याल से इसका आंसर है मेरे हिसाब से। एक क्वेश्चन में डायरेक्ट मैसेज में आया हुआ था कि डज अ बिजनेस ओनर रिक्वायर्ड अ रेज्यूमे और अ सीवी? वेल, आई डू नॉट नो, मतलब अगेन मैं आई बिजनेस ओनर क्या करना चाहता है उस रिज्यूमे से, वो डिपेंड करता है। मतलब वही मैं बात करूँगा कि रिज्यूमे बना लें, लेकिन उसका करना क्या है? आपको एंड रिजल्ट पता होना चाहिए कि आप किस लिए रिज्यूमे बना रहे हैं, ठीक है? रिज्यूमे आप बना सकते हैं जॉब के लिए, इंटर्नशिप के लिए, आपने रिश्ते के लिए बनाना है, मैच मेकिंग के लिए, वो भी रिज्यूमे ही होता है, मैच मेकिंग होती है। या आपने किसी की ऑबिचुअरी लिखनी होती है यहाँ पे कि कोई किसी की वफ़ात हो गई है, तो
उसकी आपने होता है तो ऑल ऑफ देम आर फॉर्म्स ऑफ रिज्यूमे वन वे और अदर वे टू बी ऑनेस्ट। तो आप देख लें कि बिजनेस ओनर में आपको किस लिए चाहिए। अगर बिजनेस ओनरशिप है और आपको योर बिजनेस इज बेस्ड ऑन योर पर्सनल ब्रांड, देन यू शुड हैव अ वेरी गुड पर्सनल ब्रांड। उसके मल्टीपल फॉर्म्स हो सकते हैं और सो दैट डिपेंड्स ऑन। तो ये आई थिंक वी काइंड ऑफ प्रीटी मच आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, लेकिन अगर आप लोगों के कोई और हैं तो चला आई थिंक वी कैन क्लोज इट। थैंक यू। बड़ा मजा आया आप लोगों के साथ और एज आई सेड नबील इज अवेलेबल, मैं भी अवेलेबल हूँ। मेरी प्रेफरेंस लिंक्डइन है, नबील की भी प्रॉब्लम लिंक्डइन ही होगी। तो जस्ट रीच आउट टू अस। बट आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो खाली कनेक्ट करके, लेकिन बेहतर तरीका होता है उसमें थोड़ा-सा एक कमेंट लिखो कि हू यू आर, व्हाट यू लाइक्ड अबाउट दिस। आपको एक सर्वे भी जाएगा इसके बाद कि आपको कैसा लगा, और एनीथिंग एल्स वी कैन डू बेटर, और इफ यू वांट टू बिल्ड अ रिलेशन, वो पर्सनलाइज़ एक अगर मैसेज करोगे तो दैट विल गिव कीप यू एक्चुअली इट विल एनहांस योर कैपेबिलिटीज टू कनेक्ट विद अस। इसमें लास्ट में इसी सवाल जो आपने आंसर दिया ना, बस क्योंकि हमारा टाइम ओवर हो गया है, तो मैं सिर्फ आंसर देता हूँ जो रेज्यूमे वाली है ना। तो मैं तो पहले कहता हूँ कि दुआ करें कि किसी बिजनेस ओनर को रेज्यूमे की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि उसे जरूरत पड़ने का मतलब ये है कि उसकी कंपनी या स्टार्टअप नहीं चल रहा। लेकिन एक और चीज भी इसके साथ रखें, बहुत ज्यादा मैंने ये देखा, क्योंकि मैं खुद ऑब्वियसली इस जर्नी से गुजर रहा हूँ और काफी टफ टाइम भी आया है। तो देखिए, अगर आप कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं और वो नहीं चलती, तो इट्स ओके कि आप उसको छोड़ें और कहीं पे कंपनी में अप्लाई करें, जॉब करें और फिर दोबारा से रीस्टार्ट करें। ये सोचने की ज़रूरत नहीं है लोग क्या कहेंगे, मेरी तो बेइज़्ज़ती हो जाएगी। लोग हर टाइम पे कुछ ना कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ठीक है? उनका, क्योंकि कहने के पैसे नहीं लगते ना, कहने के पैसे लग रहे होते तो पाकिस्तानियों को माशाल्लाह से सब अरबपति होते। तो ये चीज़ ख़्याल रखें, अगर नहीं भी चल रहा तो कोई इश्यू नहीं है। आप जो है वो अपने किसी जॉब पे अप्लाई करें, अपने स्किल्स पॉलिश करें, अपने आप को स्टेबल करें फाइनेंशियली, और फिर 5-6 साल बाद या जब भी आपको लगता है दोबारा स्टार्ट करें। बिल्कुल, बिल्कुल, नहीं थैंक दैट्स गुड। थैंक यू यू। एवरीवन, बहुत-बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आया।